آپ دیکھ رہے ہیں لیا ٹی وی ایچ ڈی پروگرام رنگ ادب میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان عبداللطیف قمر، اور ہمارے آج کے مہمان ہیں ڈاکٹر افضل صفی صاحب، جو کہ کروڑ کالج میں اردو کے پروفیسر ہیں۔ بطور شاعر، نقاد، محقق ملک بھر میں اپنی شہرت رکھتے ہیں۔ آج کی اس پہلی نشریات میں تمام ناظرین کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ آپ یہ نشریات پورے ذوق و شوق سے سنیں گے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے ادب اور سماج۔ یقیناً ادب اور سماج ایک دونوں کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ ادب نے سماج کی کوکھ سے جنم لیا، اور سماج کو سنوارنے کے لیے ادب بھی اپنا پہلو بہ پہلو کردار ادا کرتا رہا ہے۔ میں آپ کی ملاقات اپنے مہمان سے کروں گا، اور ان سے ہم سوال پوچھیں گے کہ ادب اور سماج کا رشتہ کیا ہے۔ السلام علیکم افضل صفی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ جیسا کہ ہمارے پروگرام کا موضوع ہے ادب اور سماج، ادب اور سماج کے رشتے کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ادب اور سماج کا باہمی رشتہ بہت گہرا ہے۔ ادب سماج سے فکری روشنی یا مشاہداتی معاملات حاصل کرتا ہے، اور سماج جو ہے وہ ادب کے پیچھے چلتا ہے۔ اب ایسا ادب جو بالکل ہی سماج کو نظر انداز کر دے اور ماورا ہو، اور جس کی جڑیں زمین میں نہ ہوں، وہ ادب کوئی آئیڈیل ادب نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ادب کا پہلا کام جو ہے اس کو زمین کی طرف موڑ دینا ہے، معروضی حالات کی طرف موڑنا ہے۔ سماج کے جو مسائل ہیں ان کو ادب بیان کرتا ہے۔ اب سماج جو ہے وہ کس طرح کا ہے، یہ مختلف ادوار میں مختلف صورتیں رہی ہیں۔ اگر آپ یہ کہنا کہ بہت سارے جتنے بھی زندگی کے اندر یا کسی معاشرے میں بڑی تبدیلیاں آئیں تو فلسفے کا بنیادی کردار ہے، اور اس فلسفے کے بیان میں آگے ادب جو ہے وہ اس کی تفہیم کے لیے، اس کو آگے چلانے کے لیے ادب کا بڑا اہم کردار رہا ہے۔ اب ماضی قریب میں ہی جائیں، پاکستان سے پہلے دیکھیں، وہ ہم ساری لوگوں کی آزادی کی بات تو ہو رہی تھی، سیاسی لوگ بھی شامل تھے، ان کا نام بھی سامنے آ گیا، لیکن اس رائے عامہ کے پیچھے ادب کا بہت گہرا تعلق ہے۔ اب اس وقت کے شعراء کی آپ شاعری دیکھیں، نظمیں دیکھیں، تو اس میں ایک سناریو مکمل طور پر پیش کیا جا رہا تھا۔ جہاں نثار اختر کی نظم جو ہے سویرا، آپ اسے پڑھیں، اور سماب اکبر آبادی کی جو نظم ہے منزل قریب تر ہے، اور سکندر علی واجد کی نظمیں اسی طرح، غزل بشارت اس کا، اور اس طرح کی نظمیں آپ پڑھیں تو وہاں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک لوگوں کے اندر آزادی کی لہر مضبوط کرنے کے لیے جہاں سیاسی پلیئر کام کر رہے تھے، وہاں ادب بھی رائے عامہ کو بنا رہا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ جس طرح کی آزادی وہ چاہ رہے تھے ایسی صورت پیدا نہ ہوئی، تو فیض کو کہنا پڑ گیا کہ یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں۔ یہ ایک الگ معاملہ، لیکن اس کے پیچھے بھی دیکھیں نا، کوئی پورا سماج بول رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد منٹو کا توبہ ٹیک سنگھ دیکھیں تو اس کا جو پاگل کا کردار ہے، وہ نہ رہنا چاہتا ہے ہندوستان کی سرزمین میں، نہ رہنا چاہتا ہے پاکستان، وہ درخت پہ رہنا چاہتا ہے۔ وہاں اسے آزادی محسوس ہو رہی ہے کہ میں یہاں بات کر سکتا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں کہاں سے، یہ سماج کی عکاسی ہوتی ہے۔ اب سماج جب تک ادب کے ساتھ چلتا ہے اور اس کی تفہیم ہوتی ہے، تو ان کا جب مل کر چلتے ہیں تو کوئی نظریہ، کوئی صورت بن جاتی ہے۔ جو ادب اس سے الگ ہونے لگتا ہے یا سماج سے کٹتا ہے تو اس کی وہ حیثیت نہیں رہتی، کیونکہ وہ مولک ہو کے رہ جاتا ہے۔ اس لیے ان کو ساتھ ملا کر لوگوں کی آواز بننا چاہیے ادب کو۔ اچھا، جیسے آپ نے فرمایا کہ ماضی میں ادب مختلف تحریکوں میں حصہ لیتا رہا ہے، یعنی جیسے سیاسی تحریکیں چل رہی تھیں یا آپ آزادی کی تحریک کی بات کر رہے تھے، تو ادب نے اس میں اپنا ایک نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں آج 20ویں صدی میں
ادب اپنے عہد کی ترجمانی کر رہا ہے، اپنے عہد میں کوئی ایسا کردار ادا کر رہا ہے جس سے وہ رائے عامہ ہموار کر رہا ہو، کوئی نئے نظریات، کوئی سوچنے کا، غور و فکر کرنے کا، یعنی معاشرے پہ اثر انداز ہونے کی صلاحیت آج کے ادب میں ہے یا نہیں؟ اصل میں یہ ہے کہ آج کے ادب میں بھی وہ صلاحیت تو ہے، جی لیکن اب ہم جب یہ کہیں گے کہ کیا مکمل طور پر ادیب ذمہ داریاں نبھا رہا ہے یا نہیں نبھا رہا، اس پہ تھوڑی سی بات کرنی پڑے گی۔ جی اب دیکھیں نا کہ کہیں ناصر کاظمی نے کہا کہ بانسری ایجاد کرنے میں کون سی آئیڈیالوجی تھی، تو اس کی وضاحت پھر بعد میں احمد ندیم قاسمی نے کی کہ جناب وجودیت بھی ایک آئیڈیالوجی ہے، صحیح اور اس طرح جو ہے سارتر کی وجودیت ہو گئی اور جنس نگاری میرا جی کے ہاں بھی ہو گئی، اس کی آئیڈیالوجی ہے، صحیح اور اس طرح مختلف لوگوں کی۔ تو اب اگر آئیڈیالوجی دیکھنی پڑے گی تو آئیڈیالوجی تو ساری ہے، اب کون سی آئیڈیالوجی جو ہے وہ سماج کی ضرورت ہے دیکھنا یہ پڑے گا۔ اگر اب ہماری آئیڈیالوجی صرف یہ ہو کہ سیلف پروجیکشن فرض کیا ہو جائے، یا ہم جیسے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی مضبوط نظریہ نہیں نظر آتا زیادہ تر موجودہ دور میں، اور ایک انتشار کی کیفیت ہے جس میں سماجی انتشار بھی ہے، فکری انتشار بھی ہے، ثقافتی انتشار بھی ہے، بہت ساری چیزیں ایسی موجود ہیں جن کی عکاسی کرنی چاہیے، لیکن یہاں یہ ہے کہ تمام لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اب بہت ساری چیزیں ایسے دیکھی کہ جو بہت سنجیدہ لکھنے والے لوگ تھے لکھ تو رہے ہیں لیکن منظر سے پیچھے ہو گئے۔ صحیح اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح وہ ایک دور ایسا تھا کہ جو ادیب یا شاعر ہوتا تھا وہ سماج کے لیے استاد کا درجہ رکھتا تھا، صحیح سماج اس سے فکری رہنمائی بھی حاصل کرتا تھا اور ادبی ذوق بھی، اور ساتھ ہی اسے فالو بھی کرتا تھا اس کے باتوں کو، نظریات کو، یعنی کہ سماج ادیب کے پیچھے چلتا تھا۔ صحیح اب فرق صرف یہ بڑا ہے کہ ادیب اکثر جو ہے نا سماج کے ڈیمانڈ پہ چلنے لگا ہے، یعنی سماج جو چیز ان سے توقع رکھتا ہے، جس قسم کی تخلیق کی، وہ وہی تخلیق کر رہا ہے، وہی دینا شروع یعنی ہو کوئی جاتا ہے۔ ایسا نظریہ پیش نہیں کر رہا جس سے سماج میں کوئی اصلاح ہو، سماج کا کوئی فائدہ ہو، سماج کو سنوارنے کے لیے یہ کوئی مجموعی فکر پیش کرے۔ تاثر نہیں ہے، مجموعی بات نہیں ہے، یہ ایک دھارا ہے۔ آپ اب یہ ایک ہے کہ آپ سماج جو چاہتا ہے ہم اسے وہ پیش کر دیتے ہیں۔ اب جب پھر وہاں شاعری یا ادب اپنا کھو دیتا ہے، جواز کھو دیتا ہے صحیح کہ یہ کام تو وہ سماج اپنی گفتگو میں کر رہا ہے پہلے ہی، اور ہم اگر اسے منظوم یا کسی ایسی نثر کی صورت میں وہی چیز دے دیں جو وہ پہلے چاہتا ہے، صحیح تو یہ تو کوئی بڑی بات تو نہ ہوئی۔ گو سنجیدہ کہنے سے سماج آپ کو موقع پہ اہمیت نہیں دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں اب وہ سنجیدہ شاعر یا پرانے شاعر بھی وہ تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ سماج کا مزاج کچھ اور ہو گیا ہے، اور اب تو وہی لوگ اسی کو پاپولر ادب جسے کہتے ہیں۔ صحیح اور پاپولر ادب کی اہمیت اپنی جگہ پہ، لیکن اس کا ایک نقصان بھی ہے کہ اس طرح لوگوں کو کی تربیت نہیں ہو رہی بلکہ لوگ تربیت کر رہے ہیں اس ادب کی۔ یعنی لوگ جو کچھ سوچ رہے ہیں، جو معاشرے میں ہمیں جو کچھ دیکھنے کو ملتا ہے، اخلاقیات کا فقدان دیکھنے کو ملتا ہے، ایک انتشار کی صورتحال ملتی ہے، ایک عدم برداشت کی صورتحال ملتی ہے، وہی کچھ ہمیں وہی کچھ ادب میں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ دیکھنے کو تو مل رہا اس ہے۔ رجحان کو کس طرح ختم کیا جا اب سکتا اس ہے؟ رجحان کو ختم کرنے کے لیے قربانی کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہی ہے کہ اگر لوگ آپ کو اچھا نہیں سمجھ رہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر آپ ایک ایسی گفتگو کریں جو سماج کے لیے بہتری کی ہے، اور موقع پہ ممکن ہے کہ آپ کے سامنے کم بھی ہو جاتے ہیں اور صحیح آپ کو اپریسیشن نہیں ملتی، تو آپ اس سے نہ گھبرائیں۔ آخر وہ لوگ بھی ساتھ چل رہے ہوں گے جو آپ کی بات کو پسند کریں گے، اور صحیح جن کے اندر وہ کیفیت یا وہ ایک پیدا ہوگی جو آپ بھی محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ کاش یوں نہ ہوتا اور یوں ہوتا۔ صحیح تو یہ صورتحال جو ہے اس کے لیے تھوڑی سی اس طرف آنا پڑے گا۔ پاپولر ادب، اب یہ دیکھیں نا کہ آپ ادب یا شعر کاغذ پہ پتہ چلتا ہے بعض اوقات۔ صحیح اب اس میں ایک دفعہ آپ کو واقعہ سناؤں کہ کہیں مشاعرے پہ گئے تھے تو ایک جگہ پہ بڑی داد اور بڑی کیفیت بنی ایک دوست کی، تو ہمارے ایک دوست ہیں قاسم راز صاحب جی کوٹک، کوٹک
तो हमने आके किसी दूसरे मौके पे फौरी तो नहीं, दूसरे दिन इकट्ठे हुए या तीसरे दिन, तो हमने कहा कि उस पर गौर कर लेने का। उन्होंने वो गजल सारी ना लिख के रखी, आप इसमें देखें कि जो इसमें क्या फनी सूरत लबास हाल है। देखें। हम इस नतीजे पे पहुंचे कि शेर एक ही था उसमें, सही। लेकिन उसके जो कैफियत थी दाद। अच्छा, जब आप कहीं होते हैं ना, तो उसमें आपकी शख्सियत भी शामिल है, आपका ताल्लुक भी शामिल है, आपका लबो लहजा भी शामिल है, सही। बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। तो उसमें अच्छा शेर अपनी जगह बना लेता है, और उसमें ये कि कागज़ पे जब शेर आता है तो उसकी, या कोई चीज़ भी, तो उस पर जब तन्हाई में आदमी पढ़ता है तो उस वक्त सही सूरतें खुलती हैं। सही। ताहम अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल को अच्छे अच्छे शेर बहुत हो रहे हैं, और अच्छे अशार के साथ हश्र ज़वायद भी है। सही। हमें सिर्फ ये पहचानना है, बड़े शानदार शायर जो हैं वो बड़ा अच्छा शेर कह सकते हैं और कह भी रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं वो इस नजरिया जरूरत के तहत वो सतही सूरत पे उतर जाते हैं, उन्हें अच्छा, इससे थोड़ा सा आपकी पीछे हटना चाहिए। आपकी इस गुफ्तगू से एक सवाल जन्म दे रहा है कि तख्लीक और शोहरत, इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है? यानी एक शायर है, एक अदीब है, वो अपने ख्यालात का इजहार करता है, शेर तख्लीक करता है, अफसाना लिखता है, तो फिर उसके बाद उसकी ये ख्वाहिश क्यों पैदा हो जाती है कि ये मेरा शेर मशहूर हो? यानी हमें इस रवैये की तरफ आना चाहिए कि तख्लीक का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि अगर किसी ने कोई शेर लिख लिया है तो लोग उस पे वाह वाह करें, सर धुनें। तो इस रवैये को किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है? और शोहरत और तख्लीक, इनमें बाहमी क्या ताल्लुक है? यानी एक शायर कोई शेर लिखता है, फिर उसकी ये तलब होती है कि मेरे शेर को पजीराई मिले। ये ज़रूरी है शेर लिखने के लिए कि उसे हर सूरत देखिए में भी, पजीराई मिले? फितरी बात है जी। कि जो अजहार करता है उसकी पहली ख्वाहिश तो होती है कि उसकी बात दूसरों तक पहुंचे। सही। अदीब में एक हद तक नरगिसियत होती है। सही। हम भी चाहते हैं, सभी आप भी चाहते हैं कि जी। हमारी बात सुनी जाए, हमारी बात को पसंद किया सही। जाए। ये जज्बा मुश्तरक है, ख्वाहिश होती है। अच्छा, कहीं अदीब के अंदर शोहरत की भी ख्वाहिश होती है। अब सवाल यह है कि कौन किस हद तक उसे, उस जज्बे पे काबू कर सही। लेता है, अपनी ख्वाहिश को पीछे रखते हुए संजीदगी की तरफ कितना जाता है। सही। वो जितना जिसका ज़र्फ होता है वो उसे उतना कंट्रोल में लाता है, काबू में रहता है, और अपने उस जज्बे को, उस जज्बे पर किसी हद तक काबू पाते हुए मकसदियत की तरफ ले जाता है बात को। सही। और वो जो उसके अंदर बात है वो बड़ी पक कर बाहर निकलती है। और जब वो बात ऐसी निकलेगी तो वो थोड़े लोगों को मुतासर करेगी, लेकिन देरपा होगी। अब बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी बातें कर भी सकते हैं, लेकिन वो जो जो सतही शोहरत लेके नहीं करते। उसकी वजह यही होती है कि शोहरत चाहिए होती है, लेकिन इस तरह की नहीं चाहिए होती सही। कि जो मैं तो समझू शोहरत है और दूसरा कोई समझे ये इसे क्या कहेंगे, शोहरत है भी कि नहीं। अब अच्छा, मैं एक और आपसे सवाल करना चाहूँगा कि अक्सर मुशायरों में हम देखते हैं कि बड़े-बड़े असातिज़ा जो सीनियर हैं और अच्छा लिखने वाले हैं, वो बाज़ औक़ात किसी सतही शेर पे ऐसे खुल के दाद दे रहे होते हैं, बजाए इसके कि हम इस सतही फ़िक्र की, इस तरह की शायरी की हौसला शिकनी करें, बल्कि उसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? असल में कोई भी शायर मुकम्मल तौर पर कोई सतही शायरी नहीं कर रहा होगा, सही। उसके यहाँ अच्छी चीजें भी होती हैं। बात वही है, क्योंकि जो डिमांड कर रहा है मुआशरा वो उसको देना चाहता है समाज को, हालांकि उसे नहीं देना चाहिए। हालाँकि उसने तो समाज को एक रोशन फ़िक्र देनी है, उसे एक अपने पीछे खूबसूरत चलाए, बनाना है, अपने पीछे चलाना है, वो खुद समाज उसके के पीछे पीछे ना चल पड़ा चले। है। जी। यही वजह है कि जो वहाँ दाद का एक सिलसिला चलता है वो पब्लिक को देख कर ही होता है, लेकिन वो ज्यादा देर, अब एक देखे ना कि आप गन्ने के जो खेत, जो गन्ना निकाल लिया जाए और बाद में जो बचता है उसमें, उसे अगर आग लगाए तो एक दफा भड़क जाती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद खत्म। और नहीं। जब आप किसी लकड़ी को जी। लगाएंगे तो लगेगी तो आसानी से मुश्किल, लेकिन देर तक रहेगी।
तो ये सतही अदब जो होता है या पॉपुलर अदब, वो एक दफा तो फैलता है आग की तरह, जी लेकिन बाद में खत्म हो जाता है। ये कितने गाने हम सुनते हैं सुबह शाम, हमारे कानों से टकराते हैं, तो आज वो नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, कितने अशार होते हैं जो एक लम्हे के लिए तो यूं लगता है कि उसके हम मुकम्मल हिसार में हैं, उधर गए सुन लिया, उधर गए सुन लिया, उधर गए सुन लिया, गाड़ी में बैठे चंद। अब तो इतनी दुनिया तेज है कि ये चीजें हफ्तों में खत्म होती जाती हैं, दिनों में खत्म। पहले होती थी किसी चीज को खत्म करने के लिए कोई साल 6 महीने लगते थे, सही। अब तो चीजें इस तेजी से रिप्लेस हो रही है कि कोई हफ्ते के बाद चीज खत्म हो रही है, 2 हफ्ते के बाद हो रही है। ये तो सिर्फ सोशल मीडिया ने फिर काम को उठा के रखा हुआ, और कुछ चीजें फिर ताजा होती रहती हैं, वरना ये चीजें जल्दी खत्म हो जाती हैं। नहीं, मेरे कहने का मकसद ये था कि मिसाल के तौर पर मैं बतौर शायर कहीं पे शेर सुनाता हूँ, सतही शेर है मेरा, जो सामईन बैठे हैं वो उनको अपील कर रहा है, सामईन मुझे भरपूर दाद दे रहे हैं, और आप भी बतौर शायर वहाँ पे मौजूद हैं, आप भी बैठे हैं। तो जब आप मुझे दाद देंगे तो उसका मतलब ये है कि एक सीनियर उस्ताद मुहक्किक एक नौजवान की हौसला अफजाई कर रहा है, तो इसका मतलब है इसने कोई बड़ी बात कर दी है। यानी ये तासुर नहीं जाता। मेरी जगह किसी और को रखता तो मैं जवाब दे भी देता। भाई इस तरह है कि वो उस वक्त की कैफियत होती है, मुशायरे का एक अपना मिजाज होता है। सही। अब कौन सी कैफियत किस सामे पर से टकरा गई उसकी तबीयत से, किस लम्हे क्या हुआ, सही। वो आप उसे मुशायरे की दाद को ना शेर की के ज्यादा हक में समझे ना खिलाफ समझे। अच्छा खैर हम दाद लेने वाला शेर बुरा भी नहीं होता, और दाद लेने वाला शेर जरूरी नहीं कि वो अच्छा भी हो। सही। तो ये दोनों कैफियत मौजूद नहीं, होती इस हैं। ये काम हम खुद भी करते हैं, हम दूसरों का गिला क्या करें, लेकिन हम इस सूरत हाल से किस तरह बाहर आ सकते हैं, आज का जो हमारा शायर है, अदीब है, उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं, और वो अपनी जिम्मेदारियों की तरफ किस तरह से वापस आ सकते हैं अपनी जिम्मेदारियों की तरफ। हाँ, ये है कि जी। सबसे पहले तो उसे अपनी तहजीब, सकाफत और कल्चर को समझने की जरूरत सही। है। उसे समझकर वो उस अंदाज से उसकी जो जड़ें तलाश करे, और उसका जो रुख है ऐसे तस्वुरात से ज्यादा अपनी जमीन की तरफ जोड़ने की कोशिश करे। दूसरा ये है कि हब्स और घुटन की जो कैफियत है, वहाँ ठीक है इस्तारा अलामत इस तरह की शायरी होती है, लेकिन समझने वाले हर दौर में मौजूद होते हैं। सही। वो महज इसलिए ना शेर कहे कि लोग वाह वाह कितनी करेंगे, या सही। मेरा शेर मुशायरे में कितनी हड़बुंग मचा देगा, उसे ये सोचना चाहिए कि ये जो जज्बात और एहसासात हैं, इनकी मुआशरे पे इम्पैक्ट क्या हो सकता सही। है। और उसका मुआशरा वही नहीं है जो हमारे सामने सामीन बैठे, सही। उसका मुआशरा फैलाव में है। तो और उसे अपना मुतालिया अच्छा करना चाहिए, चीज़ों को देखना चाहिए और तनकीदी नज़र से देखना चाहिए, और देख भी रहे हैं नौजवान। लेकिन वो बाज़ औक़ात ये शोहरत एक ऐसी चीज़ है ना कि जो अच्छे खासे आदमी को बरगला लेती है, तो वो फिर उस रास्ते पे निकलना पड़ता है, और उसको अदब को एक फरीज़े के तौर पर या एक इस तरह निभाना चाहिए कि ये मेरी एक ज़िम्मेदारी भी है। अगर मुझे अल्लाह ने सलाहियत दी है, जी। तो मैं कुछ ऐसी बात करूँ जो किसी तरह सूदमंद हो, जिसमें इंतशार की कैफियत है, या जिसमें कुछ, जैसे अफलातून ने कहा था ना कि ये जज्बात को बरअंगेख्ता करती है और फलां, और उसके शागिर्द ने जवाब भी दिया। तो वो जज्बात तो होते ही हैं शायरी में, लेकिन सतही हद तक नहीं उतरना चाहिए। सही। इशारे किनारे में सारे जज्बात का इजहार हो जाता है, नहीं। लेकिन सीधी सीधी बात, आम एक आम सी गुफ्तगू और मंजूम गुफ्तगू का ही फर्क न रहे, उसमें तख्लीकियत की बात हो, और उस पे अगर वाह वाह होती है तो वो अच्छी बात है। यहाँ तो आप कुछ भी उल्टा सीधा भी कर लें तो लोग तो आप बहुत पसंद करेंगे। नहीं, हम हमारी बात का कतन ये मतलब नहीं है कि हम ये सोच रहे हैं कि अदब को सिर्फ एक पहलू की तरफ देखना चाहिए। अदब तो अपने पूरे समाज की अक्कासी करता है, और तमाम हर किस्म के जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी अदब में की जाती है। और अब इस गुफ्तगू का मतलब ये कतन नहीं था कि जो नौजवान शोरा हैं वो मानवियत पे बात कर रहे हैं, ये शेर कह रहे हैं, इस तरह की बात नहीं है।
काफी सारी चीजें ऐसी हैं वो आपकी नजरों में भी गुजरी होंगी और दूसरे लोग भी नौजवान इतना इतना शानदार शेर कह रहे ऐसे, हैं कि कभी कभी आदमी हैरत ज़दा रह जाता है, और इतना वो आला अपनी उम्र शेर, से बड़े शेर कह रहे हैं। उम्र से बड़े शेर कह रहे हैं, तो अब लेकिन वो कभी कभी वो रास्ता बदल जाते हैं। तो अब मैं जिस तरफ आना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हम आप ना हमारे क़ारीन को सॉरी नाज़रीन को कुछ अशार पेश करें, लेकिन ये जो पिछली हमारी गुफ्तगू हुई है आप उसको नज़रअंदाज करके हमें आप भी उसी तरह के शेर सुनना चाहते हैं। देखें। आप हमें देखने वाले ज़ाहिर सी बात है इस तवक्को में होंगे कि अफजल सफ़ी साहब से कुछ अशार सुनेंगे। चलो मैं जी जरूर सुनाता हूँ जो मेरे ज़हन में आ रहे हैं। दस्तार बचाता हूँ तो सर बच नहीं सकता, वाह वाह। दस्तार दस्तार बचाता हूँ तो बचाता सर हूँ बच नहीं सकता। तो सर बच नहीं सकता, इस कर्बे मुसलसल में हुनर बच नहीं सकता, वाह वाह। वाह वाह। कि हर मोड़ पे मैं मद्दे मुकाबिल हूँ सफ़ी के, वाह। हर मोड़ पे मैं मद्दे मद्दे मुकाबिल हूँ सफ़ी के, बचता हूँ बहुत खुद से मगर बच नहीं सकता, आहा। वाह वाह। वाह वाह। बचता हूँ बहुत खुद से मगर मगर बच बच नहीं नहीं सकता, सकता। कि हरफ़े अज़हार को नहीं बेचा, वाह मैंने मय्यार को नहीं बेचा, वाह। सर की बोली लगी तो बेच दिया, मैंने दस्तार को नहीं। क्या बात। वाह वाह। तो अब ज्यादा गजलें मुझे अब याद, हमें जवान जज्बों का शायर अफजल सफ़ी सुनवा दें तो। ये फिर आप जवान जज्बे जो हैं, खैर जज्बे तो जवान ही होते हैं, जज्बे का तो लफ्ज ही जवानी वाला होता है। चलो मैं एक दो जो मेरे ज़हन में इस सामने, मैं अगर नक्श बनाऊं वाह वो मिटा सकता है, वाह। मैं अगर नक्श बनाऊं वो वो मिटा मिटा सकता सकता है, है। इश्क तूफान है घने पेड़ गिरा सकता है, आहा। वाह वाह। इश्क तूफान है घने घने पेड़ गिरा पेड़ गिरा सकता है, सकता है। ख्वाब क्या है ये दहकता हुआ अंगारा है, वाह। ख्वाब क्या है ये दहकता महकता हुआ हुआ अंगारा अंगारा है, है। चश्मे बर्फाब में भी आग लगा सकता आहा। है, वाह 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 वाह। ख्वाब क्या है ये दहकता महकता हुआ हुआ अंगारा अंगारा है, है। चश्मे चश्मे बर्फाब बर्फाब में में भी भी आग लगा लगा सकता है। सकता है, वाह वाह। सिर्फ आंखें ही नहीं सारा बदन खस्ता है, वाह वाह। सिर्फ आंखें ही सिर्फ नहीं आंखें ही सारा नहीं बदन खस्ता है। सारा वाह बदन वाह। खस्ता है, देख ये हिज्र किसी समत से आ सकता है, आहा। वाह वाह। देख देख ये ये हिज्र हिजर किसी किसी समत से आ समत से आ सकता है। सकता है, मेरे सीने पे लगे जख्म गवाही देना, आहा। मेरे सीने पे लगे लगे जख्म जख्म गवाही देना। देना, फूल खिल जाए तो माहौल सजा सकता है, वाह वाह। वाह वाह। मेरे सीने पे लगे वाह जख्म वाह गवाही देना, देना। फूल फूल खिल खिल जाए जाए तो तो माहौल माहौल सजा सजा सकता है, सकता है। क्या खबर कौन है वाह सूफी है कलंदर है कि गौस, वाह वाह। वाह वाह। क्या खबर कौन है सूफी सूफी है है कलंदर कलंदर है है कि कि गौस। गौस, मेरे अंदर ही तो है मुझको बुला सकता है, आहा। वाह वाह वाह। क्या खबर कौन वाह है वाह। सूफी है कलंदर है कि गौस, गौस मेरे अंदर ही तो है मुझको बुला आ सकता सकता है, है। कितना तन्हाई का सन्नाटा है चारों जानिब, वाह वाह। कितना तन्हाई का सन्नाटा सन्नाटा है है चारों चारों जानिब। जानिब, सांस लेने से भी एक शोर सा आ सकता है, आहा। वाह वाह वाह। फिर पढ़िए। वाह कितना वाह। तन्हाई का सन्नाटा है चारों जानिब, आहा। सांस लेने से भी एक शोर सा आ सकता वाह है, खुद से बिछड़ा तो तेरे दर पे चला आया हूँ, वाह वाह। खुद से खुद बिछड़ा से तो तेरे बिछड़ा तो दर पे तेरे चले दर पे आया हूँ। चला आया हूँ, एक तू है जो मुझे मुझसे मिला सकता है, वाह वाह। वाह खुद वाह। से एक बिछड़ा तो तेरे दर दर पे पे चला चला आया आया हूँ, हूँ। एक एक तू तू है है जो मुझे मुझसे जो मिला सकता है। मिला सकता वाह है, वाह। मैं मोहब्बत हूँ अजल और अबद मुझ में है, वाह वाह वाह। मैं मैं मोहब्बत मोहब्बत हूँ हूँ अजल अजल और और अबद अबद मुझ में मुझ है। में है, मुझ सिवा कौन सफी मुझको समा सकता है, वाह 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 वाह। मुझ सिवा वाह वाह। कौन सफी मुझको समा समा सकता सकता है। है, वाह वाह। कि ये मतलब सॉरी मतलब मैं मोहब्बत हूँ अजल और अबद मुझ में है, वाह वाह। मैं वाह मोहब्बत हूँ अजल और और अबद अबद मुझ मुझ में में है, है। मुझ सिवा कौन सफी मुझ मुझको में। समा सकता है, वाह वाह। कि कह कहे की नोक पर रुसवाई रख, वाह। कह कहे कि कह नोक कहे पर की नोक पर रुसवाई रख।
वाह वाह रुसवाई रख, दश्त की बाहों में जा तन्हाई रख, वाह 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 दश्त की बाहों में जा तन्हाई रख। तन्हाई रख, ये न हो अब वार अगला मैं करूं, आहा ये ये न न हो हो अब अब वार वार अगला मैं अगला करूं। मैं करूं, हाथ से तलवार नीचे भाई रख, वाह 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 ये न क्या हो अब बात वार अगला मैं मैं करूं, करूं हाथ से तलवार मेरे। नीचे वाह भाई रख। वाह शेर देखना के इस कदर मत आंख से पानी बहा, वाह इस कदर मत आंख से से पानी पानी बहा, बहा। इस कदर रुखसार पर मत काई रख, वाह 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 इस कदर मत आंख से पानी बहा, बहा। इस कदर रुखसार पर मत काई रख, मैंने अपने दिल को दिल से धो दिया, वाह मैंने अपने दिल को मैंने दिल से अपने धो दिल दिया। को दिल से धो दिया, वाह तेरे दिल में जो कजी है आई रख, आहा वाह वाह मैंने वाह अपने वाह दिल को दिल से धो धो दिया, दिया। तेरे आहा दिल में जो कजी है आई रख, वाह कि आ सुनाऊं तुझको दर्दे दिल सफी, वाह आ सुनाऊं आ तुझको दर्द सुनाऊं दिल तुझको सफी। दर्दे दिल सफी, रख मेरे आगे कोई शहनाई रख। वाह 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 जी बहुत खूबसूरत अशार थे। बहुत शुक्रिया। हमारे नाज़रीन को यकीनन बहुत पसंद आए होंगे। तो सफ़ी साहब अब थोड़ा सा अपनी शायरी के बारे में, अपने शेरी मजमून के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आपके कितने शेरी मजमून शाये हो चुके हैं? शेरी मजमूए तो 3 बनते हैं, बाकी एक दो तरतीब भी दे चुका हूँ, कब छपें पता नहीं। पहला सहरा से गुफ्तगू था, सही फिर निगाहें उदास हैं, फिर सहरा उदास है। इसमें पहले दोनों मजमुआ जात का भी कुछ मवाद है, इसलिए सही। नाम भी मुश्तरक हो गया। इन सहरा की कोई खास वजह आपने दो शेरी मजमूओं में सहरा के हवाले से ही नाम ये रखा है? ये लंबी बात है, वैसे भी हमारा सहरा से ताल्लुक है। नहीं, ये पता नहीं किस सहरा की बात हो रही है। ये बातनी सहरा है, ये बैरूनी सहरा है? देख थोड़ा चल सा। रेत का समंदर है, मेरा थल रेत का समंदर है। वाह वाह तो असल में ये है ना कि ये सहरा की मानवियत बहुत है, इसमें वुसअत है, और इसमें सहरा से गुफ्तगू डॉक्टर ख्याल मुरई साहब हयात थे, और उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। अल्लाह उन्हें गरीब की रहमत करे। तो उन्होंने मजमून में लिखा था कि ये दिमागी झाड़ झंकार जो है ना, जी ये उससे तखातुब है। वाह तो अब दरअसल बंजर जहनों से गुफ्तगू है उनके साथ। तो सहरा की बहुत वुसअत है, एक तो आप को जितनी इसमें वुसअत है कहीं नहीं। आपको एक खामोशी होती है, तन्हाई होती है, अलामती तौर पे भी आप ये देखें ना कि अंग्रेजी में लफ्ज देखें इसका, तो वो डेजर्ट है, सही और उसके मानी निकाल दें तो है छोड़ी हुई जगह। सही तो अब ये छोड़ी हुई जगह की जो उदासी है, सही सहरा की उदासी है, छोड़ कौन गया? यहाँ समंदर बहते होंगे, दरिया सही बहते होंगे, और ये जो हमें नजर आते हैं टीले वगैरह, ये समंदर दरिया की छोड़ी हुई जगह होगी। तो सही इसका एक अपना रोमांस है, अपनी कैफियत हैं, सही। इसके लिए तवील नशिस्त चाहिए। नहीं, इंशाल्लाह हम किसी और प्रोग्राम में आपको इस हवाले से बुलाएंगे। आखिर पर आप कुछ हमारे नाजरीन से कहना चाहेंगे? कोई पैगाम, कोई बात? बस यही है कि मुआशरे में अदम बर्दाश्त का जो रवैया है, हम सब मिल के इसे ख़त्म करें। जी अदब का एक मनसब ये भी है कि जज्बात का इनखला करे, और जो तशद्दुद की कैफियत हैं मुआशरे के अंदर, अदम बर्दाश्त है, उसे ख़त्म करे। सही एक उसका ये मनसब भी है। सही तो हमें एक दूसरे के का एहतराम करना चाहिए, एक दूसरे को तस्लीम करना चाहिए, सही और अमन और सुकून से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। सही। क्योंकि अपना ही आदमी नुकसान करता है जब ज़्यादा मसाइल अपने लिए पैदा करता है। तो बिल्कुल सही। बेहतर है समाज के लिए सूदमंद साबित हों, अपने लिए भी, सब के लिए। सलामत रहें, अल्लाह खुश रखे सब। जी, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमारे आज के खूबसूरत मेहमान डॉक्टर अफजल शफी साहब यकीनन निहायत ही मुफीद गुफ्तगू कर रहे थे, अदब और समाज के हवाले से। हमने इनसे अशार भी सुने।
آپ نے آج کے اس پروگرام کو کیسے محسوس کیا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ یہ پروگرام ہر اتوار کو 9 سے 9:30 تک ہوا کرے گا۔ میں آپ سبھی لوگوں سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں اور اس پروگرام کو دیکھیں اور اپنی قیمتی آراء سے نوازیں، تاکہ ہم اسے مزید خوبصورت سے خوبصورت ترین بنا سکیں۔ تو انہیں دعائیہ کلمات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے اور ہمارے پروڈیوسر عبد الرحمان فریدی صاحب کو اجازت۔ اللہ حافظ۔